السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائض سادسہ، ہم لوگوں نے اصحاب الفروض اور باب الحجب کو پڑھ لیا ہے۔ اصحاب الفروض کو پڑھنے کے بعد عصبہ کی بحث ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ باب التعصیب ہم لوگ پڑھیں گے آج انشاءاللہ۔ باب التعصیب یعنی عصبہ کی بحث۔ عصبہ کس کو کہتے ہیں آپ لوگ تو یہ جانتے ہی ہیں کہ عصبہ جو ہے یہ تعصیب اور عصبہ دونوں کا ایک ہی مادہ ہے۔ تعصیب لغوی اعتبار سے عصبہ یعصب عصبا کو تفعیل میں لے جایا گیا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں باندھنا اور لپیٹنا یا موڑنا۔ عصب الشیء کے معنی شدہ او طواہ او لواہ۔ التعصیب لغتاً من عصب یعصب عصبا الشیء شدہ و طواہ و لواہ۔ عصبہ یعصب عصبا کا معنی ہوتے ہیں باندھنا، لپیٹنا یا موڑنا۔ اصطلاحی اعتبار سے تعصیب کہا جاتا ہے الارث بلا تقدیر، یعنی وراثت جو غیر متعین ہو۔ غیر متعینہ وراثت کو تعصیب کہا جاتا ہے، اور جو لوگ غیر متعینہ یعنی ان کی کوئی متعین حد نہیں ہے، اصحاب الفروض کو حصہ دینے کے بعد جو باقی مال بچ جاتا ہے چاہے جتنا ہو، جو لوگ پورا کا پورا لے لیتے ہیں انہیں عصبہ کہا جاتا ہے۔ عصبہ بولتے ہیں الوارثون بلا تقدیر، تعصیب بولتے ہیں الارث بلا تقدیر، تو عصبہ ہو جائے گا الوارثون بلا تقدیر، جن کا کوئی متعین حصہ نہ ہو، ایسے وارث جن کا کوئی اندازہ نہ ہو کہ بڑا 2 پائیں گے، بڑا 3 پائیں گے، بڑا 4 پائیں گے، بلکہ باقی بچا ہوا پائیں گے۔ وہ کم بھی ہو سکتا ہے اور کبھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بھئی اصحاب الفروض میں ہم نے حصہ بانٹا اور بٹ گیا پورا کا پورا، وہیں ختم ہو گیا۔ جب پورا کا پورا وہیں ختم ہو گیا تو نہیں بچا تو نہیں ملے گا۔ تو تعصیب لغتاً من عصب یعصب تعصیب معناہ شدہ و طواہ و لواہ، اصطلاحاً الارث بلا تقدیر، التعصیب اصطلاحاً الارث بلا تقدیر، والعصبہ ہم الوارثون بلا تقدیر۔ عصبہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا بغیر کسی متعین تعین کیے ہوئے اور حد کیے ہوئے ان کو حصہ ملتا ہے۔ اسباب التعصیب، عصبہ ہونے کے کیا اسباب ہیں؟ تو عصبہ ہونے کے 2 بنیادی سبب ہیں۔ للتعصیب السببان، عصبہ ہونے کے 2 سبب ہیں، ایک ہے نسب، دوسرا ہے ولا۔ نسب میں ہونا، دوسرا ہے ولا۔ العصبۃ بالنسب، عصبہ بالنسب کیا ہے؟ ہم جمیع القرابہ الذکور الوارثین، وہ تمام قرابت دار، عصبہ بالنسب جو نسب میں آتے ہوں، وہ تمام قرابت دار یعنی نسبی قرابت دار جو مذکر ہوں اور وارث ہوں، لیکن اس میں اولاد الام نہیں آئے گی۔ اور اس میں سے بیٹیاں بھی آئیں گی جو کہ بیٹوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں، تک پوتیاں بھی آئیں گی۔ ومنہم البنات بنات الابن والشقائق والاخوات من الاب،
वला असबा बिल वला, और असबा जो वला की वजह से होता है, यानी ग़ुलामी और मालिक होने की वजह से जो असबा होता है वो मोतिक और मोतिका हैं, और इन दोनों के असबा बिन नफ्स हैं। यानी या तो वो नसबी लोग होंगे, नसब में आएंगे जो असबा होंगे, और या तो वो असबा सबबी होगा, तो असबा सबबी में जो है मोतिक और मोतिका यही दो लोग होते हैं, और इनकी अदम मौजूदगी में इनके असबा बिन नफ्स होते हैं। हाँ, एक बात जान लीजिए, असबात की 3 किस्में हैं, असबा बिन नफ्स, असबा बिल गैर और असबा माल गैर। अगर किसी के असबा उसके मालिक हैं या उसकी मालिकन है, इत्तेफाक से वो नहीं है, तो उसके असबा बिन नफ्स में से जो उससे सबसे ज़्यादा करीबी होगा वही उसका मालिक हो जाएगा। मान लीजिए ज़ैद ये किसी शख्स का ग़ुलाम है, मान लेते हैं कि ये हामिद का ग़ुलाम है, तो ज़ैद के मरने के बाद उसकी अगर उसके असबा नस्बे में से लोग नहीं होंगे, असहाबुल फुरूस उसके नहीं होंगे, तो आखिर में ये असबा हो जाएगा मालिक और पूरा माल ले लेगा। इत्तेफाक से ये भी नहीं है, तो मालिक के जो असबा बिन नफ्स में लोग होंगे उनमें जो सबसे करीबी लोग होंगे उनको हिस्सा दे दिया जाएगा। तो मुनासिब यह है कि असबा मालिक या मालिकन की अदमी मौजूदगी में ग़ुलाम की मिल्कियत का पूरा हक़ मालिक या मालिकन के असबा बिन नफ्स का होता है। तो यही चीज़ जान लेना ज़रूरी होता है कि किसी के असबा बिन नफ्स कौन कौन लोग होते हैं, किसी के जो असबा बिन नफ्स होंगे वो कौन कौन लोग होंगे, ये जानना ज़रूरी होता है। तो अब साथ में कितने तरह के असबा हो सकते हैं सबका जान लेना साथ में अच्छा है। अक़सामुल असबा, असबा की किस्में। असबा की 3 किस्में हैं, असबा बिन नफ्स, असबा बिल गैर, असबा माल गैर। इसका आप देख सकते हैं, अक़सामुल असबती सलासतुन, अल अव्वल असबतुन बिन नफ्स, अस्सानी असबा बिल गैर, अस्सालिस अल असबा माल गैर। यानी असबा बिन नफ्स, असबा बिल गैर और असबा माल गैर। असबा बिन नफ्स कौन लोग होंगे? जो बगैर किसी दूसरे का सहारा लिए हुए असबा होते हैं। जैसे बेटे को असबा होने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेटी को असबा होने के लिए मैयत के बेटे के सहारे की ज़रूरत होती है। असबा बिल गैर और असबा माल गैर। असबा बिल गैर होते हैं जो दूसरे की वजह से असबा हो जाए, और असबा माल गैर जो दूसरे के साथ असबा हो जाए। वैसे बे और मा में खाली फ़र्क करने के लिए इस तरह की इस्तिलाह बनाई गई है। और ये जान लीजिए कि अगर कोई असबा दूसरे जिन्स की मदद से असबा होता है तो उसको असबा बिल गैर कहते हैं, और जिन्स वही है जिसके साथ कोई असबा होता है या होती है तो उसको असबा माल गैर कहते हैं। जैसे बेटी या असबा होगी मैयत की बेटी मैयत के बेटे के साथ असबा होगी। अगर मैयत का बेटा ना हो तो मैयत की बेटी कभी असबा नहीं हो सकती है। तो यहाँ बेटी अपने भाई के साथ यानी मैयत के बेटे के साथ असबा हुई है, तो ये असबा बिल गैर है, क्योंकि जिन्स दूसरी है। जिसकी मदद से ये बेटी असबा हुई है उसकी जिन्स दूसरी है। लेकिन बहन बेटी पोती की मौजूदगी में जो असबा होती है तो ये भी दूसरे के साथ असबा होती है, लेकिन जिन्स वही है, जिन्स अलग नहीं, जिन्स वही है। यानी ये मुअन्नस बहन मुअन्नस तो बेटी पोती भी मुअन्नस। लेकिन यहाँ बेटी जो असबा होती है अपने भाई की वजह से, तो यहाँ दोनों की जिन्स अलग है। अगर जिस जिन्स की वजह से असबा या उसके साथ असबा है, अगर वो अलग है तो उसको असबा बिल गैर बोलेंगे, और अगर एक ही है तो असबा माल गैर बोलेंगे। वैसे मैं इसको पूरी की तफसील, तीनों की तफसील में लिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, जानने में आसानी हो। अक़सामुल असबा सलासतुन, असबा की 3 किस्में हैं, असबतुन बिन नफ्स, असबतुन बिल गैर, असबतुन माल गैर।
अल असबा बिन नफ्स, असबा बिन नफ्स किसी के कौन कौन लोग होते हैं? तो किसी के असबा बिन नफ्स 14 लोगों में से कोई एक भी हो सकता है। अल हेडिंग डालो अल असबा तो बिन नफ्स, असबा की 3 किस्में हो गई, वो आपने नोट कर लिया। उसके बाद अल असबा तो बिन नफ्स, असबा बिन नफ्स कौन कौन है ये नोट कीजिए। हम अरबाअता अशर, असबा बिन नफ्स ये 14 लोग होते हैं। नंबर 1 अल इब्न, नंबर 2 इब्नुल इब्न व इन नज़ल, पोता हो अगरचे निचले दर्जे का हो। नंबर 3 अल अब, नंबर 4 अल जद्द व इन अला, नंबर 5 अल अख अशकीक, नंबर 6 अल अख मिन अल अब, नंबर 7 इब्नुल अख अशकीक, नंबर 8 इब्नुल अख मिन अल अब, नंबर 9 अल अम अशकीक, नंबर 10 अल अम मिन अल अब, नंबर 11 इब्नुल अम अशकीक, नंबर 12 इब्नुल अम मिन अल अब, नंबर 13 अल मुअतिक, नंबर 14 अल मुअतिका। यानी बेटा, पोता, बाप, दादा, सगा भाई, अल्लाती भाई, सगे भाई का लड़का, अल्लाती भाई का लड़का, सगा चचा, अल्लाती चचा, सगा चचा का लड़का, अल्लाती चचा का लड़का, आज़ाद करने वाला मालिक या आज़ाद करने वाली मालिकन। एक बात जान लीजिए, कोई भी मुअन्नस सिवाय मोतिका के असबा बिन नफ्स नहीं होती है। बजाते खुद अपने दम पर कोई भी मुअन्नस असबा नहीं होती है मोतिका के सिवा, यानी मालिकन के सिवा। तब तो खैर मालिक और मालिकन का रिवाज ख़त्म हो गया है, तो हम यह कह सकते हैं कि कोई भी मुअन्नस असबा बिन नफ्स नहीं हो सकती। असबा बिन नफ्स कोई मुअन्नस नहीं होती। हाँ, मुअन्नस असबा जो होती है तो किसी की वजह से और किसी के साथ होती है। तो ये हो गए असबात की तीनों किस्मों में से असबा बिन नफ्स। आप इसमें नोट के तौर पर लिख सकते हैं ला उनसा असबातुन बिन नफ्स वल मुअतिका। ला उनसा असबातुन बिन नफ्स वल मुअतिका, कोई भी मुअन्नस असबा बिन नफ्स नहीं होती है सिवाय मालिकन के। अज़्ज़ौज व औलादुल उम लैसु मिनल असबा, शौहर या अखियाफी भाई बहन ये कभी असबा नहीं होती। शौहर या अखियाफी भाई बहन ये असबा नहीं होते हैं। अल असबतु मअल गैर, अल असबतु बिल गैर, ये 2 चीज़ें बाकी रह गई हैं। तो असबा बिन नफ्स हो गया, लिखो अल असबतु बिल गैर, असबा बिल गैर हम अरबाअतु असनाफ, 4 किस्म के लोग हैं जो असबा बिल गैर होते हैं। नंबर 1 लिखो अल बिन्त, ब्रैकेट में लिख लोगे बिल इब्न, यानी बिन्त जो असबा होती है वो इब्न की वजह से। नंबर 2 लिखो बिन्तुल इब्न, आगे ब्रैकेट में लिख लोगे बे इब्निल इब्न। अशकीका यानी सगी बहन, ये जो असबा होगी आगे लिख लोगे बिशकीक, सगे भाई की वजह से असबा होती है ये। नंबर 4 अल उख्त मिनल अब, यानी अल्लाती बहन, इसके ब्रैकेट में लिख लोगे बिल अख मिनल अब, यानी अल्लाती भाई की वजह से। आप जानते हैं कि बेटी को बेटे के सिवा और कोई असबा नहीं बना सकता। इसी तरह से पोती को पोता असबा बनाएगा, उस दर्जे का भी और उससे निचले दर्जे का भी पोता उसको असबा बना सकता है। सगी बहन को सगे भाई के अलावा कोई असबा नहीं बना सकता। इसी तरह से अल्लाती बहन को अल्लाती भाई के अलावा कोई दूसरा असबा नहीं बना सकता है। चलिए एक और लिख लीजिए असबा मअल गैर, जो
दूसरों के साथ असबा होती है, यानी जिन्स वही होती है। वह सिनफान, ये दो लोग हैं। नंबर 1 अशकायक, यानी सगी बहनें, ये माल फुरूइल इनास, मुअन्नस फरा के साथ, यानी बेटी पोती के साथ ये असबा होती है। दूसरा है अल अखवात मिनल अब, ये भी माल फुरूइल इनास, मुअन्नस फरा के साथ ये असबा होती है। एक चीज़ और ख़ास तौर से जान लीजिए, अगर कोई कंडीशन ऐसी है कि वहाँ कोई असबा बिल गैर भी हो रही है और असबा माल गैर भी हो रही है, किसी वजह से असबा बिल गैर है और किसी वजह से असबा माल गैर हो रही है, तो ऐसी सूरत में असबा बिल गैर लिखा जाएगा और असबा माल गैर उसको नहीं लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए बिन्त है, उख्त है, अख है। बिन्त है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी का भाई है। तो अब यहाँ बेटी को दो हिस्सा मिल जाएगा। बहन को देखो, उख्त को देखो, उख्त की बहन की जो तमाम हालतें आप सेट करेंगे तो इसमें मिलता है कि बहन, सगी बहन बेटी पोती के साथ असबा होती है और सगी बहन भाई के साथ भी असबा होती है। सगी बहन बेटी पोती के साथ असबा और सगी बहन भाई के साथ भी असबा होती है ना। यानी यहाँ अलमय्यत, अगर आप मसला लिखेंगे अलमय्यत, वहाँ लिखें बिन्त, उख्त, अख, तो यहाँ बिन्त के नीचे 1/2 लिखोगे और उख्त को जब देखोगे तो उख्त के साथ बिन्त को देखते हो तब भी असबा होती है उख्त, और अख को देखते हो तब भी उख्त असबा होती है। लेकिन दोनों तरह के असबा में फ़र्क है। अगर उख्त के साथ हम बिन्त की रियायत करते हैं तो ये असबा माल गैर है। उख्त बेटी के साथ असबा माल गैर है और उख्त ये अख के साथ असबा बिल गैर है असबा, दोनों सूरतों में असबा है। तो अब यहाँ उख्त को असबा बिल गैर कहा जाए या असबा माल गैर कहा जाए, तो ऐसी कंडीशन के लिए हालत है, ऐसी हालत के लिए ये बात है कि अगर बहन कोई ऐसा मसला हो जहाँ उसके लिए असबा बिल गैर होना भी सेट होता हो, असबा माल गैर होना भी सेट होता हो, तो ऐसी सूरत में बहन जब असबा बिल गैर होगी तो असबा माल गैर नहीं होगी। इसके लिए लिख लो अल अखवातो, ये कायदा है, अल अखवातो इदा कुन्ना असबतन बिल गैर फला यकुन्ना असबतन माल गैर। अल अखवात इदा कुन्ना असबतन बिल गैर फला यकुन्ना असबतन माल गैर। बहनें जब असबा बिल गैर होंगी तो असबा माल गैर नहीं होंगी। इस कायदे का सीधा मतलब यही है कि कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, कोई ऐसी हालत आ जाए जहाँ बहन असबा बिल गैर ही हो रही हो और असबा माल गैर भी हो रही हो, तो वहाँ उसको असबा बिल गैर कहा जाएगा और असबा माल गैर वहाँ उसको नहीं लिखा जाएगा, है ना। क्योंकि असबा माल गैर लिखने में और करने में परेशानी है। बाकी बचा हुआ माल, अब भाई भी असबा हो रहा है, बहन भी असबा हो रही है, दोनों एक ही दर्जे के हैं, तो किसको दिया जाए किसको ना दिया जाए, ये परेशानी हो जाएगी और यह मसला ही पूरा ख़राब हो जाएगा, हिसाब पूरा गड़बड़ हो जाएगा, पूरी तकसीम गलत हो जाएगी। इस वजह से यहाँ जब बहन को असबा बिल गैर और असबा माल गैर दोनों हालतें सेट होती हैं बहन के लिए, तो वहाँ उसको असबा बिल गैर ही माना जाता है, असबा माल गैर नहीं माना जाता है। और मैंने आपको तफसील लिखा दी कि असबा माल गैर में कौन कौन लोग और कैसे हैं, और असबा बिल गैर में और असबा बिल नफ्स में। आज मैंने आपको असबा और असबा के असबाब, असबा की तारीफ़, असबा के असबाब, असबा के अक़साम और उसकी पूरी डिटेल, पूरी तफसील मैंने लिखा दी है। मैं समझता हूँ कि आपको असबा की पूरी बात समझ में आ गई होंगी। अब कुछ असबा के ख़ास अहकाम हैं, उनको मैं लिखा दूँगा, फिर समझा दूँगा इंशाअल्लाह। असबा के ख़ास अहकाम कुछ चीज़ें हैं, बस बहुत मामूली चीज़ें हैं, उसको आप जान लेंगे तो असबा की पूरी बहस जो है ख़त्म हो जाएगी। फिर
एक मुख्तसर सी बहस है, अगर कई तरह के असबा इकट्ठा हो जाएं, मान लीजिए असबा बिन नफ्स में 14 लोगों का आपने पढ़ा, इत्तेफाक से 4 लोग आ जाएं एक साथ, असबा बिल गैर असबा, असबा माल गैर असबा बिल गैर भी हो जाए, असबा बिन नफ्स भी किसी के इकट्ठा हो जाए, तो ऐसी सूरत में क्या सबको बराबर दिया जाएगा या किसी को दिया जाएगा, किसी को नहीं दिया जाएगा, इसकी क्या पूरी तफसील है, इस सिलसिले में आपको अगले दर्स में इंशाअल्लाह समझाया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।